everyone. How are you all? I hope that you all are fine. So, in the series of Indian polity, we have discussed so many topics yet day that we have completed the Constituent Assembly preamble, features of Constitution, fundamental rights, duties, directive principles, President, Parliament, Supreme Court, PM, Council of Ministers, Governor, Chief Ministers and Council of Ministers, High Court also. Today we will discuss about the state legislature. We'll start with state legislature, a very important topic in context of RAS exam and state exams. Apart from that, some few questions will directly ask in UPSC prelims also. So let's start with the state legislature. Let's begin with the state legislature. So, state legislature. State legislature, part 6th of the constitution, from article 168 till article 212. So article 168 to article 212 talk about the state legislature. So basically state legislature include Legislative Assembly. It is present in 31. There are 31 legislative assemblies currently in India. 28 states have legislative assembly and 3 union territories. That is Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. They have the legislative assembly. Okay, and legislative council. It is in 6 states of India. It is only in 6 states of India, that is UP, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. So in the 6 states we have the legislative council. So if I'll talk about Rajasthan has only legislative assembly, and so state legislature basically contain legislative assembly, legislative council and obviously governor also, because the governor has the power to give the signature to the bill. Now, how it may be decided to have legislative council. ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता? How it may be decided to have a legislative council in the state? See, to have a legislative council in the state, legislative assembly pass a special resolution through special majority. That is 2/3 of present and voting. And half of total members. So 2/3 of present and voting and half of total members decide whether they have the legislative council or not. अगर जैसे मान लो राजस्थान ने प्रपोजल भेज रखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मान लीजिए राजस्थान है,
अब राजस्थान के कंटेक्स्ट में अगर राजस्थान को लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करना है तो पहले असेंबली के 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उस दिन आए उसका 2/3 एंड हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स से वो चीज पास करवानी पड़ेगी। अगर वो पास हो गई तो फिर देन लोकसभा मस्ट अग्री विथ इट, लोकसभा मस्ट अग्री विथ इट बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो लोकसभा उसमें सिंपल मेजॉरिटी से अग्री कर लेगी। तो अगर आपको कहीं पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करनी है तो पहले उस स्टेट के द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन से वो पास हो और लोकसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से एक्सेप्ट कर ले। सो दिस इज द प्रोसेस टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन कॉम्पोजिशन, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? सो मिनिमम मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं वो होते हैं 60 और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 500। सो मिनिमम 60, मैक्सिमम मेंबर्स आर 500 इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कुछ स्टेट्स है जैसे भारत के लाइक सिक्किम, गोवा, यहां पर 30 भी हैं। ठीक है, कुछ अरुणाचल नागालैंड, यहां सॉरी 40 है, ये 40 है। अरुणाचल नागालैंड यहां पर और कम है, 30 अराउंड नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किन्हीं स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पर ऑब्वियसली सीट्स कम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मेंबर्स जो हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 500 होते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। राजस्थान के कंटेक्स्ट में जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ असेंबली की वो है 200 सीट्स। ठीक है, और जैसे यूपी की हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्ट्रेंथ हमने देखा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 60, मैक्सिमम 500, सिक्किम गोवा में 40, अरुणाचल नागालैंड 30 है। देन नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1/3 member retire after the end of second year, and fresh election begin at the starting of third year, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल राज्यसभा की तरह है, इनडायरेक्टली मेंबर सिलेक्ट होते हैं, मेंबर्स का टर्म 6 इयर्स का होता है। ठीक है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर होते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली members are directly elected, members directly elect होते हैं इसमें, members are directly elected in लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, बाबा लोकसभा बोल रहा हूँ मैं, सेम होता है। टर्म जो है टर्म इज 5 years, टर्म 5 years का होता है, लेकिन यूजुअल केस में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो 5 years से कम पे भी हो सकता है,
और अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो एक्सटेंड भी हो सकता है 1 साल। ध्यान रखें, वापस बोल देता हूं मैं ये टर्म, यूजुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टर्म होता है 5 ईयर्स का होता है, लेकिन अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसके साथ 5 ईयर से कम भी हो सकता है 2 दिन का ही हो, 1 दिन का ही हो, ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो फिर ये 5 ईयर से एक्सटेंड होकर 6 ईयर, 1 साल बढ़ता रहता है। हर 6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ता है, वो हम लोग जब इमरजेंसी करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन देखिए, 1/3 मेंबर्स, मैंने बताया था ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। 1/3 मेंबर तो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत से होता है, ठीक है। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। बी 1/3 मेंबर्स are elected by those members who are not the member of legislative assembly, ठीक है। 1/3 यहां पे हो गए। सी 1/12 मेंबर आर इलेक्टेड बाय students who are graduated after 3 years of their graduation, and residing in the state next 1/12 are elected by teachers of secondary school and above, और 4th 1/6 are nominated by governor। मैं वापस समझाता हूं, बहुत सिंपल है। देखो ये 1/3 1/12 टोटल असेंबली की सीट्स का है, ठीक है। जैसे राजस्थान में अगर 200 हैं तो 1/3 मतलब 66 मेंबर्स तो म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, लोकल बॉडीज से आएंगे। 66 मेंबर्स ही आएंगे वो उन लोगों से जो अब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है लेकिन पहले रह चुके हो या लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई कनेक्शन हो। 1/12 मेंबर, 200 का जो 1/12 है वो स्टूडेंट्स उसमें वोट करते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनको ग्रेजुएट हुए हुए 3 साल हो गए और उसी स्टेट में रिसाइड और सेटल हुए हुए हो। देन 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल एंड अबव, जो सेकेंडरी स्कूल 10th से ऊपर के जो पढ़ाते हैं टीचर्स, जो 11th 12th में पढ़ाते हैं, 10th में पढ़ाते हैं, वो चूज करेंगे 1/12 और वो उन टीचर्स को भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, दैट इज फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो इनमें वो चूज करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में भी तो एक मेंबर को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन को, तो अब एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविजन है वो हट चुका है। ना तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, ना स्टेट असेंबली में एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है बात, ड्यूरेशन हमने देख ही ली है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ए,
he shall be the citizen of India. He shall be the citizen of India. भारत के सिटीजन होने चाहिए सबसे पहले, तो यही मस्ट है. He shall be the citizen of India. Second, he should not be less than 25 years of age. He should not be less than 25 years of age in case of legislative assembly. In case of legislative assembly. And 30 years of age. 30 years of age in case of legislative council. In case of legislative council. तो 25 साल की एज से कम के नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 30 साल की एज में से कम नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में. सी, he shall not hold any office of profit. Any office of profit, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रखा हो उन्होंने. ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है. He shall be the citizen of India. He should not be less than 25 years of age in case of legislative assembly and 30 years of age in case of legislative council. He shall not hold any office of profit. और उसके अलावा भी बहुत अलग डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे he should not be of unsound mind के नहीं होने चाहिए, या फिर कोई किसी बिजनेस नहीं करना चाहिए 25% से ऊपर का स्टेक हो गवर्नमेंट का. ये सब चीजें हैं जो हम आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा. अब बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन. एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पे क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है? 10th शेड्यूल में मेंशन है, और ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, स्पीकर इन केस ऑफ legislative assembly, speaker in case of legislative assembly, और chairman in council. chairman in case of legislative council. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले एंटी डिफेक्शन कैसे हो सकता है? He shall vote contrary he shall vote contrary to the decision of पार्टी. पार्टी बोल रही कि इस प्रपोजल के फेवर में वोट करो, साहब अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं. पार्टी बोल रही अगेंस्ट में वोट करो, वो फेवर में वोट कर रहे हैं. तो ये कॉन्ट्ररी हो गया. इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर join any political party, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली इंडिपेंडेंट मेंबर ने, जीते इंडिपेंडेंटली थे और ज्वाइन कर ली बीजेपी. देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है. मान लो कि है ना लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, बीजेपी के पास 99 सीट्स आई, एक सीट और 2 सीटें और चाहिए मेजोरिटी के लिए. वहां किसी इंडिपेंडेंट मेंबर ने, निर्दलीय ने सपोर्ट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है. लेकिन अगर वो निर्दलीय जाके बीजेपी में शामिल हो जाता है जीतने के बाद, तो एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा. ठीक है. और सी, if nominated member join any party 6 months after his nomination. मतलब कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और उसने 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंटी डिफेक्शन में. हाँ, अगर वो
6 महीने पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा ओथ, members of legislative assembly take oath in front of गवर्नर एडमिनिस्टर करवाते हैं इनको ओथ। ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर इनको एडमिनिस्टर करवाते हैं ओथ। और जब ये नॉमिनेशन पेपर भर रहे होते हैं तब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इनको ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिमूवल ऑन अदर ग्राउंड्स, और कौन से ग्राउंड्स पे आप इन्हें हटा सकते हैं? फर्स्ट, if any member is member of both legislative assembly and council, his seat may become vacant as administered by law, अगर एक बंदा असेंबली और काउंसिल दोनों का मेंबर है, उस केस में उसकी कौन सी सीट जाएगी, उसकी कौन सी सीट वैकेंट उसको करनी पड़ेगी, जो लॉ के द्वारा डिसाइडेड होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एब्सेंट, लगातार 60 डेज तक एब्सेंट है बिना किसी इंफॉर्मेशन के तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा, रेजिग्नेशन, मेंबर अपना रेजिग्नेशन दे दे, उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो रिमूवल ऑन अदर ग्राउंड्स में क्या है, अगर कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का मेंबर है, मान लीजिए एक पर्सन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान में तो खैर काउंसिल है नहीं, मान लो वो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली और कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में एक साथ मेंबर बनता है, तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा वो कौन सा ऑफिस चूज कर रहे हैं। अदरवाइज लॉ के अकॉर्डिंग जो भी होगा उस ऑफिस से उनको वैकेंट हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है एब्सेंट, 60 डेज तक लगातार एब्सेंट हो जाते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के। तो तीसरा, वो रेजिग्नेशन दे दें, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं कि भाई मैं अपनी पोस्ट छोड़ रहा हूं, या एंटी डिफेक्शन में आ जाए। इन सारे केसेस में उनका रिमूवल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल्स की। तो स्पीकर की बात कर लेते हैं पहले। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, he is the head of the legislative assembly। लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं स्पीकर। उसके अलावा ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करते हैं असेंबली में। ही मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम। सी, ही कैन एडजर्न द हाउस, ही कैन एडजर्न द हाउस, हाउस को एडजर्न कर सकते हैं। ठीक है। डी, ही सर्टिफाइज whether a bill is money bill or not, whether a bill is money bill or not, is money bill or not। उसके अलावा he decides about anti-defection law, he decides about anti-defection law। तो ये सारी पावर्स होती हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की।
अब अगर आपको स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हटाना है, रिमूवल ऑफ स्पीकर, स्पीकर को आपको हटाना है लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो कैसे हटा सकते हैं? फर्स्ट ही गेव रेजिग्नेशन, टू डेप्यूटी स्पीकर, वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे डेप्यूटी स्पीकर को, ही गेव हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, अपना रेजिग्नेशन दे देंगे डेप्यूटी स्पीकर को। दूसरा, he should be removed by effective majority, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाए भी जा सकते हैं। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी मैं वैसे बता चुका हूं, लेकिन मैं वापस रिपीट कर देता हूं यहां पे। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स आए हैं उसका 2/3 एंड हाफ ऑफ टोटल मेंबर, उससे आप स्पीकर को हटा सकते हैं बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरा, 14 डेज नोटिस देंगे आप इनको, भाई अपना रिप्रेजेंटेशन ही तो रखेंगे ये, 14 डेज नोटिस देंगे आप इनको कि भाई हम आपको हटा रहे हैं, आप अपने इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हो, तो ये भी बताना पड़ेगा। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन द मोशन ऑफ रिमूवल is under consideration, he can vote in first instance, देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगा इसमें, लेकिन बहुत सिंपल है, मैं 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं ये पूरी क्या बात है। सिंपल सी चीज है, देखो हम यहां 2 सिचुएशन ले लेते हैं। एक स्पीकर का नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, कोई रिमूवल नहीं चल रहा, और यहां एक ले लेते हैं हम स्पीकर रिमूवल। अब अगर नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, नॉर्मल है, स्पीकर अपने हाउस में है, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, मान लो ऐसा हो जाए किसी बिल के ऊपर दोनों हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो टाई कर दे। मान लो एक बिल चल रहा है, जैसे राजस्थान में किसान बिल को लेकर कोई बिल आया, अब उसको लेकर 100 मेंबर्स तो उसके फेवर में है, 100 उसके अगेंस्ट में। उस केस में क्या होगा, स्पीकर उसमें कास्टिंग वोट करते हैं उसको तोड़ने के लिए, डेडलॉक को तोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इनिशियली वोटिंग हो रही होगी, तब स्पीकर उसमें वोट नहीं करते। मतलब अभी मैं स्पीकर हूं लेजिस्लेटिव असेंबली का, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मेरे रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा, किसान बिल आता है उस पर वोटिंग कर रहे हैं मेंबर्स सारे, तो मैं उसमें वोटिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी स्पीकर हूं। अगर मैं वोटिंग कर दूंगा तो मैं ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी होगी उसके फेवर में वोट करूंगा, तो मैं अभी वोट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ऐसी आ जाए कि 100 फेवर में है, 100 अगेंस्ट में है, तो स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर वोट करेंगे उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, उस टाई को तोड़ने के लिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज है कि स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, भाई स्पीकर को हटाने का प्रोसेस चल रहा है, उसी बीच में एक और बिल आ जाता है, किसान बिल। अब उस केस में स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, तो स्पीकर वोट नहीं करते टाई के केस में, डेडलॉक नहीं तोड़ेंगे। अगर डेडलॉक हो गया तो उस डेडलॉक को तोड़ेंगे डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर उस समय स्पीकर बन जाएंगे। लेकिन स्पीकर उस समय क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उस केस में पहली बार में वोट कर सकता है, लेकिन टाई के केस में वोट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। डेप्यूटी स्पीकर के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेप्यूटी स्पीकर में ये ध्यान रखें कि स्पीकर नहीं है तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर बनता है। डेप्यूटी चेयरमैन के केस में भी यही है, म्युनिसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन होता है। डेप्यूटी चेयरमैन के बेसिस में इतना ही पढ़े बस कि डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो डेप्यूटी चेयरमैन बन जाता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में। लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, chairman of legislative council is the head of the council, काम इनकी भी वही है, ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करते हैं। मनी बिल के केस में इनके पास कोई पावर नहीं है, इनका रिमूवल भी सेम इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है,
14 दिन का एडवांस नोटिस देके। हाँ, लेकिन अब इनके केस में बिल्स को लेकर क्या पावर आती है, मान लो chairman will not vote in first instance he can vote only in case of tie। अगर टाई होगा तो ही ये कास्टिंग वोट डालेंगे, पहली बार में ये भी वोट नहीं करते, जैसे स्पीकर वोट नहीं करते। मतलब अगर चेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल गया, ठीक है, अब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल गया तो चेयरमैन पहली बार में वोट नहीं करेंगे, वोट कब करेंगे, जब टाई हो जाएगा, जैसे जो सेम स्पीकर के केस में था। लेकिन अगर रिमूवल ऑफ चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन, अगर रिमूवल चल रहा है चेयरमैन का, उस केस में he cannot vote in first instance also। मतलब अगर सपोज करो वो किसान बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया और पैरेलली चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिमूवल भी चल रहा है, तो उस केस में चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो टाई के केस में वोट करेंगे, टाई के केस में डेप्यूटी चेयरमैन वोट करेंगे क्योंकि वो चेयरमैन हो जाएंगे। लेकिन चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार में भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है वो अगर रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होता है तो फर्स्ट टाइम पे वोट करता है, लेकिन चेयरमैन जो होते हैं वो वोट नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। मतलब अगर मिनिमम नंबर, जैसे राजस्थान के केस में अगर 200 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 20 मेंबर्स होने चाहिए उस दिन हाउस को रन करने के लिए। तो कोरम इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। तो ये कितना होता है, ये होता है 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मतलब अगर राजस्थान में असेंबली में 200 सीटें हैं तो 20 मेंबर्स होने चाहिए, अदरवाइज उस दिन हाउस रन नहीं करेगा। सिमिलरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो विपक्ष का नेता है, उसके लिए भी किसी भी पार्टी के पास में मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो 10%। तो अगर आज 200 सीटें हैं तो मिनिमम 20 सीटें आपके पास आनी चाहिए, तभी जाके आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हो, ऑपोजिशन पार्टी बन सकते हैं। 20 सीटें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोरम देख लिया। अब हम देख लेते हैं बिल्स के कंटेक्स्ट में बातें। अच्छा, सेशंस ही बच रहा है, सेशंस भी देख लेते हैं। सेशन के केस में देखो, समन, सबसे पहले गवर्नर जो होते हैं वो समन करते हैं हाउस को कि भाई आ जाइए, मीटिंग शुरू हो रही है, सेशन शुरू हो रहा है। दूसरा, प्रोरोग, गवर्नर हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं कि भाई ये समर सेशन, मॉनसून सेशन खत्म हो गया, अब विंटर सेशन शुरू होगा, तो समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। और तीसरा, डिसॉल्व कर सकते हैं, हाउस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 5 साल पूरे हुए कि भैया अब हम हाउस को डिसॉल्व कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, उस केस में वो हाउस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस ऑफ बिल्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। बिल्स की क्या कंडीशन होगी डिसोल्यूशन के टाइम पे। मान लो हाउस डिसॉल्व हो गया और कोई बिल अगर किसी पोजीशन पे है तो क्या होगा। मान सपोज इफ अ बिल इज पेंडिंग इन legislative council but passed by assembly, it lapsed, वो लैप्स हो जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है, और अगर मान लो उसी बीच में सरकार गिर जाती है, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। सेकंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया,
बट पेंडिंग है असेंबली में, बट पेंडिंग इन असेंबली, देन लैप्स हो जाएगा। आगे पेंडिंग इन काउंसिल, पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास्ड इन असेंबली, नॉट पास्ड इन असेंबली, will not lapse, will not lapse, will not lapse। सिमिलरली ऑपोजिट में भी ऐसा ही होता है, अगर पेंडिंग हो असेंबली में और पास्ट काउंसिल से नहीं हुआ है तब भी लैप्स नहीं होगा। पेंडिंग फॉर गवर्नर्स अप्रूवल, पेंडिंग फॉर गवर्नर्स अप्रूवल, गवर्नर के अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, नॉट लैप्स नहीं होगा बिल। और लास्ट है बिल सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, बिल सेंड फॉर रिकंसिडरेशन विल नॉट लैप्स। अगर बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है और अगर उसी बीच में सरकार डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स नहीं होता। तो ये बिल के कंटेक्स्ट में हमने देखा कि बिल के कंटेक्स्ट में और क्या क्या चीजें हो सकती है। आगे इसमें एक दो चीजें और बच रही हैं। एक तो बच रहा है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, एंड एडवोकेट जनरल। Minister and Advocate General can sit in any house, किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं जाके, can sit in any house, डिस्कस कर सकते हैं, but vote only in that house of which they are member, of which they are member। मान लो एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके बैठा है, बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही करेगा, और वाइस वर्सा। एडवोकेट जनरल दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वोट दोनों हाउस में ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमने राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। और लास्ट टॉपिक आज की क्लास में है बिल्स। बिल्स के कंटेक्स्ट में क्या चीजें हैं हमारे पास, व्हाट ऑल आर द टाइप्स ऑफ बिल्स। तो देखो दो तरह के बिल होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। अगर दोनों हाउस में से कहीं पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे एक ही हाउस है, सिर्फ जैसे राजस्थान में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऑब्वियसली सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होगा। जैसे कर्नाटका में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी असेंबली है, तो काउंसिल में भी पास हो सकता है और असेंबली में भी। बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर इसको पास कर सकता है, कोई मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। मतलब चाहे तो प्राइवेट मेंबर हो जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन सिर्फ एमएलए है, वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा, if passed by assembly, if passed by assembly, then council will hold it maximum for 4 months, maximum for 4 months, 3 months in first instance, 3 months in first instance and 1 month in second instance, in second instance। क्या मतलब हुआ इसका? देखो
बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से में ओरिजिनेट हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया। अब काउंसिल उस बिल पे क्या कर सकता है? काउंसिल उस बिल को, ये ऑर्डिनरी बिल के केस में बात हो रही है, काउंसिल उस बिल को 3 महीने तक होल्ड कर सकता है। 3 महीने तक उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें पॉइंट 5 गलत है, पॉइंट 10 गलत है, पॉइंट 15 गलत है, 21 गलत है। अब 3 महीने बाद काउंसिल, 3 महीने के पहले भी कर सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम 3 महीने है। 3 महीने के बाद काउंसिल ने बोला कि हमें ये वाले पॉइंट्स पसंद नहीं आ रहे। असेंबली ने कहा ठीक है आपको पसंद नहीं आ रहे, हम चेंज कर देते हैं। पहला ऑप्शन असेंबली ने चेंज कर दिया। काउंसिल ने बोला हमें ये पॉइंट पसंद नहीं आ रहे, असेंबली ने बोला तो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, बिल तो पास होगा। तो काउंसिल वापस वो बिल काउंसिल के पास जाता है, काउंसिल ने ये चेंजेस बोले, असेंबली ने एडमिट नहीं करे, उसके बाद वो बिल वापस काउंसिल में जाएगा। काउंसिल उस बिल को सेकेंड इंस्टेंस में सिर्फ 1 महीने होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो टोटल कितना महीने हो गए? 4 महीने। 3 महीने पहली बार में और दूसरा तब जब उसके वापस वो बिल किया। अगर मान लो काउंसिल ने बोला कि हमें ये 4 पॉइंट पसंद नहीं आ रहे, असेंबली ने बोला ठीक है हम चेंज कर देते हैं, तो उस केस में वापस बिल काउंसिल में नहीं जाएगा, सीधा गवर्नर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर काउंसिल ने जो चेंजेस सजेस्ट करें वो असेंबली को अच्छे नहीं लगे तो बिल वापस काउंसिल में जाता है, काउंसिल 1 महीने तक उसको और देख सकता है, उसके बाद वो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल के केस में। तो इसका मतलब क्या बात हुई, क्रक्स क्या निकला कि ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। इधर वहां पे लोकसभा राज्यसभा में, राज्यसभा कैसे इक्वल पावर थी ऑर्डिनरी बिल को लेके कि अगर लोकसभा ने कोई चीज सजेस्ट करी, राज्यसभा ने बोला हमें पास पसंद नहीं आ रहा, तो ज्वाइंट सिटिंग होती थी। यहां ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन ही नहीं है। और एक चीज और, जहां पे काउंसिल है ही नहीं वहां तो 4 महीने की बात ही खत्म हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, गवर्नर के पास बिल चला जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के पास क्या कंसेंट है, प्रेसिडेंट पावर। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, सॉरी गवर्नर होगा यहां पे, ऑर्डिनरी बिल यहां पे गवर्नर होगा। गवर्नर के पास क्या पावर है? सबसे पहले एक्सेप्ट द बिल, बिल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट द बिल, बिल को एक्सेप्ट कर ले शांति से, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं रिजेक्ट द बिल, गवर्नर ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, वही 2 ग्राउंड्स पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया कि भैया हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, मेजोरिटी गिर रही है, गवर्नर पास नहीं करेंगे, या आचार संहिता लग जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, उस केस में गवर्नर बिल को पास नहीं करते। तीसरा सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए भेजने बिल को कि भाई मुझे इसमें 3-4 पॉइंट पसंद नहीं आ रहे। अगर रिकंसिडरेशन के बाद वो पॉइंट चेंज हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद में असेंबली और काउंसिल कहते हैं आपको पसंद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं हमको पसंद आ रहे हैं, तो उस केस में गवर्नर को वो बिल पास करना ही पड़ेगा। सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन बट इफ इट अगेन केम ही हैज टू एक्सेप्ट इट, वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ही हैज टू एक्सेप्ट इट। और चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, वो बिल वो राष्ट्रपति के पास रखवा दे कि भैया ये बिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, मैं नहीं जानता, अब राष्ट्रपति जाने असेंबली जाने। अब उस केस में गवर्नर पिक्चर से हट गया, राष्ट्रपति है और असेंबली है। राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है उस बिल पे, ए एक्सेप्ट द बिल, राष्ट्रपति भी एक्सेप्ट कर लें उस बिल को, रिजेक्ट द बिल, प्रेसिडेंट भी रिजेक्ट कर सकते हैं, वही 2 सिचुएशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाए या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, राष्ट्रपति भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अब यहां एक आती है जबरदस्त बात, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन इफ बिल अगेन केम टू प्रेसिडेंट, if bill again came to president, he is not bound to accept it, he is not bound to accept it, वो बाउंड नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। गवर्नर तो बाउंड हो जाते हैं लेकिन प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते कि वो उस बिल को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डिनरी बिल के केस में। अब बात कर लेते हैं मनी बिल। मनी बिल
इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन काउंसिल, सिर्फ काउंसिल में इंट्रोड्यूस्ड होगा, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन काउंसिल, सॉरी इन असेंबली, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन असेंबली, सिर्फ असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ओनली, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी इस बिल के लिए, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर सर्टिफाई करें उसको कि भाई ये बिल हम पास कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर। अब बिल के केस में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल hold it for maximum 14 days, hold it for maximum 14 days, 14 दिन तक लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम 14 दिन के बाद अगर वो बिल को होल्ड कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। गवर्नर की क्या पावर्स हैं, गवर्नर पावर मनी बिल को लेके, मनी बिल को लेके गवर्नर की क्या पावर्स हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, या प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करवा दो, प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करवा दो, बस ये दो ही पावर है, ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, ए एक्सेप्ट कर लें या तो उस बिल को, या रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट वही है नो कॉन्फिडेंस मोशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ये आज हमने देखा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कंटेक्स्ट में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आए होंगे टॉपिक्स। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव के कंटेक्स्ट में था। अब हमारे दो जो क्लासेस बची हैं उसमें एक में तो हम इमरजेंसी करेंगे जो भारत में आपातकाल लगता है उसका, और एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करेंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।